Hello everyone. In last video, actually we discussed about the quantization of electric charge and basics of electric charge. So in this, we will actually discuss about the use or application of this quantization of electric charge, and uh, these numericals are very important to understand the concept of electric charge. So I think this is one of the best two examples we are taking from the textbook. So first of all, we will discuss example 1.2. See, in example 1.2, it is given that if 10 raised to 9 electrons move out of a body to another body every second, it means in 1 second there are 10 raised to 9 electrons which are moving from one body to another body. How much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body? So in short, यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि 10 raised to 9 electrons are moving from body 1 to body 2. So first of all, we will calculate the charge of this 10 raised to 9 electrons. So first of all, we will calculate the charge of this 10 raised to 9 electrons, and it is moving in 1 second. And then actually we want to calculate the time to total charge of 1 coulomb. So to get a total charge of 1 coulomb means when obviously one body actually 10 raised to 9 electrons are moving out from one body to another body. So actually another body is getting the charge, और वो चार्ज कितना है तो कि भाई वो 1 सेकेंड में हमें कितना चार्ज मिल रहा है वो हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन quantization of electric charge, here we will calculate the charge for the given electrons. So Q equal to NE. ये हमने लास्ट टाइम वीडियो में फॉर्म ये देखा है फॉर्मूला. N is the integers and actually E is the fundamental charge. So this is the Q equal to NE. It shows the quantization of electric charge. Obviously number of electrons are given, 10 raised to 9 electrons. Charge of electron is 1.6 into 10 raised to minus 19. So obviously total charge will be 1.6 into 10 raised to minus 10 coulomb. This is the charge. This is the charge. It is moving in 1 second. Ready? So now it is a very simple equation. See, 1.6 into 10 raised to minus 10 coulomb charge. Ready? It is moving in 1 second from one body to another body. So obviously for this much of charge, that is 1 coulomb, it takes, ready, how much time? Suppose it is t. Now it is very simple equation, and from this we can calculate the charges. We can calculate the time for the given charge. Ready? So obviously it is t is equal to, obviously ये एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे. सो फाइनली इट इज 1 अपॉन, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 10. इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इट्स वैल्यू is around 6.25 into 10 raised to 9. So 6.25 into 10 raised to 9 second. And if we convert it into years, हमें अगर ईयर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा उसको, तो 365 into 24 into 20 3600. तो इस तरह से हम करेंगे तो उसको सेकेंड से हम ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं. उसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें. सो व्हेन वी डिवाइड डिवाइड बाय 365 into 24 into 3600,
So we will get it into years. Approximately it is nearly equal to 198 years. Ready? Okay, so this is about the first example. Now 1.3, we are discussing 1.3. How much positive and negative charge is there in a cup of water? बहुत सिंपल है, इसको हम let us assume that the mass of water in water cup is around 250 gram. बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है. एंड द मॉलिक्यूलर मास, अगर हम मॉलिक्यूलर मास की बात करें यहाँ पे, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज सपोज, उसका हम सिंबल ले लेते हैं m0. तो ऑब्वियसली इट इज 18 ग्राम. सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम. देन वी आर टेकिंग गिवन मास 250 ग्राम. मीन्स ये हमने एज्यूम कर लिया है कि भाई लेट अस एज्यूम दैट द मास ऑफ वाटर इन कप ऑफ वाटर इज रेडी, इट इज 250 ग्राम. नाउ वी हैव a simple formula, m upon m naught, which is equal to n upon na. m means given mass, m naught means molecular mass, na means Avogadro number, and n means number of molecules or number of ions or number of atoms, ऐसा हम बोल सकते हैं यहाँ पे. तो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे देखें 1 मोल की बात करें, एक्चुअली ये ऐसा ही हो गया कि वी आर टेकिंग Avogadro number. सो फ्रॉम दिस वी विल फाइंड द n. हम लोग यहाँ से क्या फाइंड करेंगे? सो इट इज n. So if we take n as a subject, so it is m upon m naught into na. ये फॉर्मूला यहाँ से बनेगा. हम n को सब्जेक्ट ले रहे हैं, so m upon n naught into na. All the values are given. So from this we will get the n, capital N. And यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, this is 250 divided by 18 into this is 6 into 10 raised to 23. और या ऐसा भी बोल सकते हैं कि 6.02 into 10 raised to 23. हमने एक अप्रोक्सीमेट 6 यहाँ पे ले लिया है. तो ये कैलकुलेशन करने से हमें क्या मिल जाएगा? n मिल जाएगा. सो फ्रॉम दिस यू कैन कैलकुलेट द n. नाउ आवर नेक्स्ट टारगेट इज ऑब्वियसली, अगर यहाँ पे फिर से क्या आ गया? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. बिकॉज बोला क्या गया है? हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, चार्ज कितना है. तो चार्ज के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Q इक्वल टू NE. तो फिर से देखो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया यहाँ पे. n हमें यहाँ से मिल जाएगा, Q इक्वल टू NE से हमें चार्ज मिल जाएगा. लेकिन हमें क्या बोला गया है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर. अब पॉजिटिव चार्ज के लिए हमें प्रोटॉन्स कंसीडर करना है और नेगेटिव चार्जेस के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स लेना है. सो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि भाई जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो जो हमें प्रोटॉन्स के लिए आंसर मिलेगा वही आंसर हमें इलेक्ट्रॉन्स के लिए मिलेगा. प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वो हम पॉजिटिव बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होगा उसको हम नेगेटिव बोलेंगे. तो अब इसमें और कुछ नहीं हमें सोचना है. अभी हमारा सिर्फ एक ही यहाँ पे काम है कि भाई Q इक्वल टू NE से हमें चार्ज मिल गया. अब ये किसके लिए मिला हमें? तो कि भाई हमें ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए या एक प्रोटॉन के लिए मिला, बिकॉज यहाँ पे E है इसलिए. और ये हमने किसके लिए फाइंड किया है? तो यहाँ पे हम जो फाइंड कर रहे हैं वो सिर्फ एक, बिकॉज हमने यहाँ पे 18 ग्राम लिया है. तो वी आर टेकिंग 1 H2O मॉलिक्यूल. अगर हमें टोटल फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हाउ मच देर आर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. तो उसके लिए हमें पहले H2O, ये हम लोग जानते हैं. तो H2O में अगर आप बात करो तो देर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम. अब ऑक्सीजन एटम में 8 प्रोटॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे.
और हाइड्रोजन एटम 2 है तो उसके 2 हो जाएंगे। इन शॉर्ट ये जो हमारा आंसर आएगा उसके साथ हमें 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये एक प्रोटॉन के लिए हो गया, बिकॉज देखो H2O मॉलिक्यूल के अंदर, रेडी, ऐसा हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि 2 हाइड्रोजन एटम्स, 1 ऑक्सीजन एटम। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स हम बोल रहे हैं तो 2 प्रोटॉन होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन एटम, इट मीन्स 8 प्रोटॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल 8 + 2 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव आंसर इज फॉर प्रोटॉन्स एंड नेगेटिव आंसर फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये आप लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं।